Hey friends, in this video we are going to study about development of microsporangium of male cone of Pinus. So in the previous video we have covered about the male cone of Pinus and the structure of microsporophyll. So we can see this in the diagrammatic form. Here we can see the cluster of cones of male cones which are present on the dwarf shoot, and they are present in clusters. So these are the pale brown color male cones, and if we see one male cone over here, so this is representing a single male cone which is an oval, a small ovoid structure about 2 to 4 centimeter in length. So these male cone, they bear a large amount of microsporophylls, which are scaly microsporophylls that are arranged spirally around the cone axis of the male cone, right? So these are the microsporophylls present on the male cone. अब ये जो मेल कोन है, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स को अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में वी कैन सी दिस इज द कोन एक्सिस, एंड दिस कोन एक्सिस कंसिस्ट ऑफ these microsporophylls. These are the scaly microsporophylls which are arranged spirally around it. तो यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है ये स्टेराइल है, अपर पोर्शन जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स का वो फर्टाइल है. So these are the microsporophylls, and these microsporophylls bear this microsporangia, which is a pollen sac structure, or called as microsporangium. Now these microsporophyll if we see, तो ये जो है स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल का, ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल का. दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रंट व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल. Now this microsporophyll we know is divisible into three parts, which is this basal part, this upper sterile part apophysis, and this middle portion of microsporophyll. So this middle portion of microsporophyll, it consists of two microsporangia. These two microsporangia, they are elongated sac-like structure which is present on the lower surface. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अबैक्सियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है इन द माइक्रोस्पोरोफिल. नाउ दीज माइक्रोस्पोरेंजियन की डेवलपमेंट कैसे होती है इन दिस पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. First of all, the development of microsporangium is eusporangiate type. Now what is the meaning of eusporangiate type? It means कि there are certain cells which is called as hypodermal initial cells. ये जो hypodermal initial cells हैं ये एक तरह के meristematic cells हैं which have the ability to produce different kinds of cells and different types of cells. So the development of these microsporangium or microsporangia on the lower surface of this microsporophyll, is eusporangiate type. That is, they develop from a group of hypodermal initial cells. तो ये जो hypodermal initial cells हैं ये कुछ सेल्स हैं जो कि यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे पोर्शन को माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो हम देख सकते हैं इसकी डेवलपमेंट के टाइम पे. So these hypodermal initial cells, they are present, and due to this the development of these microsporangia takes place on the lower surface of this microsporophyll. Now the initial cells, the hypodermal initial cells, they divide periclinically, which means कि ये horizontally divide होते हैं. So these hypodermal initial cells, they divide horizontally or periclinically to form two layers. The outer, this is the outer, green color is the outer layer which is called as primary wall cells, while the inner layer is called as primary sporogenous cells. Let's see the first of all development of this primary wall cells. तो जो primary wall cells हैं ये divide करते हैं further by 2 to 3 layers of anticlinal and periclinal division. तो एक ना एंटीक्लीनर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ये 3-4 बार करते हैं, जिससे कि इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्ड बन जाती हैं प्राइमरी वॉल सेल्स की. इसकी जो इनर लेयर बनती है प्राइमरी वॉल सेल्स की आफ्टर द डिवीजन ऑफ पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, इट्स कॉल्ड द टेप्टम. Here in this diagram we can see this brown colored layer, single layer is called as tapetum, which is formed by the anticlinal and series of anticlinal and periclinal division of this primary wall cells. So the innermost layer is called tapetum, which provide nourishment to the developing microspores. यहाँ पे जो है अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर्स बनने होते हैं, तो उनकी नरिशमेंट के लिए जो है ये टेप्टम वॉल बनती है by these primary wall cells.
And the other wall cells, other wall layers, these are the blue color other wall layers which is called as the endothecium. So endothecium wall layers हैं, single layer tapetum है which is formed by multiple divisions of this primary wall cells. On the other hand, the primary sporogenous cells, they further divide to form a mass of sporogenous tissue. तो ये अंदर की तरफ ये स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करते हैं, बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल सेल्स डिवाइड करते हैं. ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है टिश्यू बना लेते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू. So this sporogenous tissue is formed within them and the outermost is tapetum, मतलब कि यहाँ के इसके बाहर tapetum है और ये wall layers हैं which is the endothecium. और जो सबसे बाहर जो पूरा का पूरा microsporangium है उसको कवर किया गया है epidermis से. So the outermost layer of the microsporangium is epidermis, beneath epidermis is the endothecium and after that it's tapetum and it encloses sporogenous tissue. तो यहाँ पे जो है प्राइमरी वॉल सेल्स का काम हो गया ख़त्म. नाउ द स्पोरोजिनस सेल्स विच गेट्स डिविजिबल इनटू स्पोरोजिनस टिश्यूज, दीज स्पोरोजिनस टिश्यूज फर्दर गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में. द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर द डिप्लॉयड सेल्स एंड दीज आर द लास्ट सेल्स ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. वी नो देयर आर टू जनरेशंस, फर्स्ट इज स्पोरोफिटिक and the other one is gametophytic. Sporophytic generation represents the diploid phase while the gametophytic phase represents the haploid phase. तो यहाँ पे जो है डिप्लॉयड फेज़ का आखिरी डिप्लॉयड फेज़ के सेल्स हैं जो कि हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. अभी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं यहाँ पे जो टेप्टम है वो क्या करेगा, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एक तरह से, सो दैट दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे गेट डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन. एंड वी नो कि अगर एक सिंगल जो डिप्लॉयड सेल है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा तो इट विल प्रोड्यूस 4 टेट्रेड सेल्स, 4 सेल्स जो कि है 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. तो ये जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं, तो वे टेट्रेड की फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट होते हैं. सो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेट्रेड which is covered by a wall layer. After that, these tetrad they get independent of each other by absorbing nutrients from this tapetum layer और एक दूसरे से अलग होके बन जाते हैं माइक्रोस्पोर्स. And each newly formed or each well formed microspore consists of 2 layers which is the outer thick exine and inner thin intine. अब ये जो एक्साइन और इंटाइन है ये जो है कुछ टाइम बाद जो माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट होती है तो इस तरह के बन जाते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ये विंग्ड माइक्रोस्पोर्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं जो कि पोलन सैक के अंदर है. सो दिस इज़ फॉर्म्ड बाय एक्साइन. जो आउटर एक्साइन है वो अपने आप को जो है बल्ज्ड आउट करके 2 विंग स्ट्रक्चर बना लेती है हर एक माइक्रोस्पोर के पास. तो ये क्या बन जाते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन्स, और वी कैन से विंग्ड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस. सो ओवर हियर the pollen grains, they are pale yellow in color. As we can see the color of them, it's a pale yellow in color and they are winged pollen grains. So this is the development of microsporangium. तो यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल कैसे डेवलप हुआ. नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ये कहाँ होती है, इसके अंदर होती है. ये सारी की सारी डिवीजन, ऑल दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. सो हमें पता है कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं एक माइक्रोस्पोरोफिल के पास. ये जो स्केली माइक्रोस्पोरोफिल है इसके पास 2 एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ द माइक्रोस्पोरेंजिया और इसकी डेवलपमेंट इस तरह से होती है यूस्पोरेंजिएटाई फ्रॉम द इनिशियल सेल्स. नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम. सो ईच मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए स्मॉल sessile elongated sac like structure which is situated on the lower surface of this microsporophyll. It's pale brown in color. Remember, cone is pale brown, microsporophyll is pale brown, this microsporangia is pale brown, but microspore is pale yellow in color. This is the difference. And this microsporangia it consists of 2 wall layered which is covered by epidermis. पूरा का पूरा ये जो microsporangia है उसकी outermost layer को जो है epidermis कहते हैं और ये जो है इसके पास टेप्टम होती है जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती है आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. एंड एंडोथीसियम वॉल लेयर प्रेजेंट होती है इनके पास
और इनके पास जब ये टोटली मैच्योर हो जाते हैं, सो व्हेन माइक्रोस्पोरेंजिया गेट्स टोटली मैच्योर्ड, इनके बीच के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वो डिस्पर्स कैसे होते हैं? बेसिकली ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ द हाइसेंस। एज वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ द हाइसेंस। तो यहाँ पे जो है लाइन ऑफ द हाइसेंस यहाँ पे आ जाता है। तो इन हॉट ड्राई वेदर, जब गर्मी में जब गर्म मौसम होता है उस टाइम पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी लाइन ऑफ द हाइसेंस से एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बनती है, चीरा निकलता है, चीरा बन जाता है, जिससे जो है माइक्रोस्पोर्स जो हैं बहुत सारे पेल येलो माइक्रोस्पोर दे गेट डिस्पोज्ड एंड दे गेट रिलीज्ड एंड डिस्पोज्ड इन एयर एंड दे आर रिलीज्ड इन सच अ हाई अमाउंट। ये जो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स हैं, ये इतने ज़्यादा इसमें से रिलीज़ होते हैं कि दे फॉर्म अ येलो क्लाउड इन द हिमालयन इन द पाइन फॉरेस्ट। तो पाइन फॉरेस्ट में इतने ज़्यादा रिलीज़ होते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन सच अ लार्ज अमाउंट दैट दे प्रोड्यूस येलो क्लाउड लाइक एरिया। तो इस फिनोमिना को या इस फीचर को इट इज़ समटाइम कॉल्ड एज शावर ऑफ सल्फर डस्ट। सो ये जो बहुत सारे येलो पोलन ग्रेन्स हैं, ये विंग पोलन ग्रेन्स हैं, जब ये डिस्पोज होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सो दे फॉर्म ए येलो क्लाउड एंड दिस फीचर इज समटाइम्स कॉल्ड एज शावर ऑफ सल्फर डस्ट इन द हिमालयन पाइन फॉरेस्ट। अब क्या हो गया कि ये जो पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसका काम क्या था कि माइक्रोस्पोर निकाल देना, विंग्ड येलो माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनको रिलीज़ कर देना, डिस्पर्स कर देना एयर में। अब उसके बाद क्या है, जो एम्पिटी माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सूख जाएगा, इट विदर्स। तो ये सूख जाता है दी एम्पिटी माइक्रोस्पोरेंजिया विदर एंड द होल पोलन ग्रेन, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया किस पे प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड हैं इस पूरे के पूरे कोन में। तो पूरा का पूरा काम जो है कोन का ख़त्म हो गया, मेन काम था माइक्रोस्पोर्स रिलीज़ करने का, पोलन ग्रेन्स रिलीज़ करने का, वो यहाँ से हो गए। सो दी होल मेल कोन इट ऑल्सो ड्राई and fall off from the tree. So this is the whole phenomena of development of microsporangium and the dispersal of microspores, winged microspores or pollen grains from the microsporangia. So I hope that you liked this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.